تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نظریں بھی نیچی رکھتا ہے، کیونکہ نظر جو ہے نا، آپ کو بتاؤں میں، نظر ہی وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان جو ہے نا وہ شکار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نظر شیطان کا تیر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس چیز پہ نظر گڑ جائے نا، سمجھ لیں شیطان اسی پہ اڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مومن اپنے، کہتے ہیں نا، نظروں کی ہی حفاظت کرتے ہیں، نہ شیطان کو تیر دیتے ہیں، نہ شیطان نشانے لگائے۔ آپ سمجھے ذرا، یعنی جو قرآن ہے، میں حیران ہوتی ہوں، وہ جڑ سے مرض کو پکڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی اپنی نظریں حدود میں رکھ، قیود میں، قوانین میں، ضابطے میں، شرم و حیا میں اپنی نظر کو پہلے ہی رکھ، تاکہ نہ شیطان کا تیر چلے، نہ شر پھیلے، اور نہ تو شریر اور شرارت کرے، نہ شریر بنے نہ شرارت کرے۔ تو جڑ سے اللہ کہتا ہے مرض کو پہلے ہی پکڑ لو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جڑ سے نہیں پکڑتے، جب مرض حد سے باہر ہو جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کریں۔ اب یہ چیز قابو نہیں میرے آ رہی، یہ فحاشی کی عادت، یہ بے حیائی کی عادت، یہ فیشنوں کے پیچھے دوڑنا، یہ شہوت پرستی کی عادتیں میرے قابو میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا قابو نہیں ہے اپنے اوپر، ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تو نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی تھی۔ اگر تو نے نظر کو حدود اللہ میں رکھا ہوتا نا، تو تیرا نفس قابو سے باہر نہ ہوتا، آپے سے باہر نہ ہوتا۔ تو نے نفس کو اتنی طاقت دی تیر چلا چلا کے کہ وہ قابو سے اب باہر ہو گیا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تو کہتا ہے مرض کو جڑ سے پکڑو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ دیکھیں جب تک نظر کی حفاظت نہ ہو تب تک شرم گاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ پاکی کا طریقہ ہے، نظر پاک، من پاک، نیت صاف۔ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سیکھا تھا، من پاک نیت صاف۔ اگر نظر پاک ہوگی تو من پاک ہوگا، من پاک ہوگا تو نیت پاک ہوگی، نیت پاک ہوگی تو پھر ہم اپنے آپ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، حدود، قیود، اللہ کے اصول و ضوابط، صراط المستقیم والے بن جائیں گے۔ تو یہ سارا دیکھیں نظر سے شروع ہوتا ہے، یہ سارا شر، یہ ساری شرارت نظر سے شروع ہوتی ہے۔ جس کی نظر باغی ہوتی ہے نا، اس کا عمل بھی شر والا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پاکیزگی کی بات ہے، یعنی اگر تم پاکیزہ بننا چاہتے ہو، پاکیزہ خیالات والے، پاکیزہ کلمات الفاظ والے، پاکیزہ جذبات والے، اور پاکیزہ کردار والے بننا چاہتے ہو نا، تو اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بیس بتا رہا ہے، بنیادی علاج بتا رہا ہے۔ اگر ہم بنیاد کو مضبوط کر لیں گے تو پھر شیطان ہمیں پکڑ اور جکڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا اپنی نظر نیچی رکھو، کہ یہ پاکیزگی کی بات ہے، اور پھر تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ یہ نہ سوچو کہ میں دکھاوا کر لوں گا تو اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو تجھے تیرا نفس ہی پکڑ لے گا، پھر تجھے شیطان پکڑ لے گا، پھر تجھے اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ بچ تو کہیں سے بھی نہیں سکتا نا۔ دیکھیں کیسے اللہ، میں حیران ہوتی ہوں، کہتے ہیں نا تسلسل سے اللہ قدم بقدم سلسلہ وار ہمیں اللہ بات سمجھاتا ہے، تاکہ ہم اس کو پہلے ہی قابو میں کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں قابو کر لے۔ اللہ کہتا ہے شیطان کو پہلے ہی نفس کو قابو کرنا، نظر کو قابو کر، تاکہ نفس اور شیطان تجھے قابو نہ کریں۔ پہلے ہی لگام لگا اپنے نفس کو، تاکہ شیطان تیرے اوپر سوار نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں آیت 31 میں اللہ عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں حیران تھی، عورتوں کو اللہ نے زیادہ حکم دیے، عورتوں کو زیادہ حکم دیے، مردوں کو تو صرف 2 باتیں کہی نا۔ یہ ذرا غور کر کے دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ زیادہ باعث بنتی ہیں۔
अल्लाह कहता है मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें हदूद में रखा करें, अपने महरम तक रखा करें, हलाल तक, तोयब तक रखा करें, यानी निगाहें नीची रखा करें। निगाहें नीची रखने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मैं वक्ती तौर पर नजर नीचे कर ली और उसके बाद जो दिल किया, नहीं, हदूद में। नीची रखने से मुराद है निगाह को हदूद में, महरम तक, हलाल तक, जायज तक, तोयब तक रखो। और अपनी शर्मो हया की हिफाजत करो। इस्मत और इज्जत की हिफाजत देखें बाद में है, आप नोट कर रहे हैं ये सारी बातें। पहले अल्लाह कहता है नजर की, ताकि शर तेरे पास ना आए, और जब शर तेरे पास नहीं आएगा तो फिर तेरी इज्जत और इस्मत की भी हिफाजत होगी। और फिर अल्लाह कहता है मजीद क्या, अपनी आराइश यानी जेवर और लिबास, इसको जाहिर ना कर, अपनी आराइश को जाहिर ना होने दिया कर। आज देखें औरतें कहती हैं ये औरतों का हक है, अच्छे लिबास पहन के, साज संवर के बाहर जाएं, साज संवर के बनी संवरी रहना, तो ये तो शरीयत ने हक दिया है? औरतें ये मैं हैरान होती हूँ, तवीलें पेश करती हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो कह रहा है अपनी आराइश को जाहिर ना कर। आराइश को अगर आपने जाहिर नहीं करना तो इसका मतलब क्या है? इसका मानी नहीं आपको पता? कौन सी औरतें हैं जो कहती हैं आराइश तो औरत का हक है, आराइश करनी चाहिए, लेकिन उसकी हदूद भी हैं साथ। अगर ये हक अल्लाह ने दिया है आराइश का, तो साथ हदूद भी बताई हैं, साथ अल्लाह ने महरम की शर्त भी लगाई है। लेकिन हम तो कहते हैं आराइश हर जगह ही मेरा हक है, हर जगह ज़िबाइश करना मेरा हक है, मेरी आराइश हर कोई देखे, मेरी ज़िबाइश हर कोई देखे। इस तरह देखें औरतें जो होती हैं ना, वो फितने का बायस बनती हैं, और जहाँ जाती हैं फसाद फिर पैदा करती हैं। वो फिर अकेली नहीं जाती, फिर शयातीन उनके साथ। जो जो चीज़ वो दिखा रही होती है ना, वो शयातीन के फिर तीर होते हैं, आपको पता है? वो शयातीन का फिर तीर, और वो शर का बायस बनते हैं वो तीर। फिर आपको समझ आ रही है गहरी बात? जो भी औरतें हदूद कयूद में नहीं होती और अपनी आराइश को जाहिर करके बाहर जाती है ना, वो फिर शैतान को दावत आम दे रही होती है। आपको समझ आ रही है? तो फिर शयातीन जो है मिनल जिन्नाती वन्नास, इंसानों में भी और जिन्नों में भी, दोनों फिर उनके पीछे लग जाते हैं। शर वाले जिन और शर वाले इंसान उनके पीछे लग जाते हैं, और उन्हें ना भी कुछ हो ना, तो ऐसी औरतों के फिर घरों में फसाद, जिंदगियों में फितने, और दिलों में फिर कहते हैं ना स्याहियां और दंगे झगड़े, इस तरह के लोग भी करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो अल्लाह तो हमें जड़ से ही बचा रहा है, दंगे फसाद फितने से अल्लाह जड़ से ही बचा रहा है। अल्लाह कह रहा है तो पहले ही अपनी आराइश को अपने तक रख, सादगी से बाहर जाओ तो सादगी और आजजी से, जेबो जिबाइश और आराइश से बाहर ना जाओ। बाहर जब तुम जाओ तो तुम्हारा लिबास सादा होना चाहिए। ये जो हम बेल बूटे वाले और हम रंग बिरंगे, हम कहते हैं ना भड़कीले रंग और फूल बेल वाले जो लिबास भी पहन के बाहर जाते हैं ना, इसकी भी इजाजत नहीं है। देखिए अपनी आराइश को जाहिर ना करो, यानी चाहे वो लिबास की आराइश है, चाहे वो तुम्हारे चेहरे की आराइश है, चाहे वो तुम्हारे जेवर की आराइश है, चाहे तुमने मेहंदी और चूड़ियों की आराइश की हुई है, किसी भी आराइश को अल्लाह कहता है जाहिर ना होने दिया करो। मगर जो इनमें से खुला रह जाए, यानी तुम्हारे हाथ, मजबूरी है तुम्हारे पाँव, मजबूरी है खुले रह जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर भी आराइश नहीं होनी चाहिए कि आपने इतनी मेहंदियों के डिज़ाइन लगाए हुए हैं और आप ना महरमों से लेन देन कर रहे हैं दुकानों पे जाके, और ना महरम की नज़र आपके हाथों की आराइश पे ठहर जाए। ये भी करने की इजाज़त नहीं है, आपको पता है? ये भी फितने का फसाद का बायस बन सकती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है और उसके बाद अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रखो, यानी अपना सीना, अपनी गर्दन, देखिए ये सब सीने में आता है, ये कंधे, ये सीना और ये गर्दन, सब अल्लाह कहता है इनके ऊपर ओढ़नियां ओढ़े रखा करो हैं। और अपने हामद और अपने बाप और अपने ससुर और अपने बेटे और बेटों के हामद और भाइयों भतीजों और बांजों और औरतें
اور جو غلام لونڈیاں ہیں یہ تو اب نہیں ہے غلام لونڈیوں کا کانسیپٹ آج کے دور میں. اللہ کہتا ہے پھر جو خواجہ سرائے یہ بھی نہیں ہے کانسیپٹ آج کے دور میں. تو پھر آگے یعنی جو نابالغ بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کے سوا اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو. یعنی ہم اپنی زینت لباس کی، چہرے کی اور جیولری کی اگر دکھا سکتے ہیں تو صرف ان کو جو ہمارے محرم والے رشتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کسی کو بھی نہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اللہ اتنی اصول و ضوابط، یہ اللہ ہمارے نا کہتے ہیں نا حدود و قیود اللہ طے کر رہا ہے. یہ اللہ کہتا ہے یہ تیرے قوانین اور شرائط ہیں، باہر جانا ہے نا ان قوانین کے تحت جانا، ان شرائط کے تحت جانا، ان حدود میں جانا، تو پھر تمہارے ساتھ فتنہ فساد نہیں ہوگا. تو دیکھیں جو عورتیں ہیں ہم ان باتوں کا، قوانین کا، اصول و ضوابط کا جو اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں نا، اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے. جو خاوند بتاتا ہے نا، میں نے عورتوں کو یہ دیکھا ہے کہتی ہیں خاوند کو راضی کرنا ہے. جو میرے خاوند کی خوشی ہے نا وہ کہتا ہے اچھے لباس پہن کے چل، میرے فرینڈ نے دعوت کی ہے، افطاری کی دعوت کی ہے تو بھی چل. تو وہ بیوی کو اچھا لباس پہنا کے جیولری کہتا ذرا پہن کے جانا، پتہ چلے میں خیال رکھتا ہوں تیرا، اچھی جیولری پہن کے، اچھا لباس پہن کے میرے ساتھ چل. تو عورتیں جو ہیں بن سنور کے چلتی ہیں میرے خاوند نے کہا تھا. یعنی وہ یہ کہتی ہیں میری زندگی کے اصول و ضوابط میرا خاوند طے کرے گا. حالانکہ ہمارے اصول و ضوابط خاوند نے نہیں اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں قرآن میں. یہ ہے ظلم جو ہم عورتیں کرتی ہیں اپنے اوپر. مجازی خدا کو اتنا راضی کرتی ہیں کہ حقیقی خدا کو ناراض کر دیتی ہیں. آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یعنی لوگوں کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے، حرام. اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا رسول اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. تو آپ سوچیں ہم کیا عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہاں اپنی طرف سے خاوند کی تابع داری، فرما برداری، خاوند راضی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ حرام کام ہے. اللہ کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر خاوند کی خوشی اور مرضی سے تیار ہونا، کپڑے پہننا، فیشن کرنا، میک اپ کرنا اور دوستوں کے گھر محفلوں میں جانا اور پھر اکٹھے بیٹھنا اور پھر گپے لگانا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ اللہ کی حدود سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے نا، پیچھے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے میں انہیں پکڑتا ہوں درد سے، مرض سے، تکلیف سے اور پھر آخر میں عذاب سے. عذاب گھر بیٹھے انہیں آ جاتے ہیں. جو کام کرتے ہو نا اللہ گھر بیٹھے پھر اس کا نتیجہ دکھا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے یہ درد، یہ مرض، یہ تکلیف میرے اوپر آئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے نا، اس لیے ہم فٹافٹ رونا شروع کر دیتے ہیں اور شکوہ شروع کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر ہم قرآن سے اپنا جائزہ لیں نا، ہم کبھی بھی اللہ کے آگے شکوہ نہ کریں، اپنی اصلاح کریں. ہم شکوہ کبھی نہ کریں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید احتیاط بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ساری اپنی آرائش زیبائش چھپانے کے بعد، سادگی اور عاجزی سے چلنے کے بعد، یعنی ایسے اکڑ کے بھی نہ چلنا، نہ مردوں سے کھلی گپے مارنا ہے. اللہ کہتا ہے عاجزی، زاری، مسکینی سے چلتے ہوئے جانا، اتنی عاجزی ہو کہ پاؤں زمین پہ زور سے بھی نہ مارنا ہے. دیکھیں کئی عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے بڑا اکڑ کے چلنا اور بڑا چوڑے ہو کے چلنا ہے اور پاؤں زمین پہ مار کے چلنا کہ بھئی میری یہ چال ایسی ہے، ہماری تو ٹور ایسی ہے. اللہ کہتا ہے کوئی باہر ٹور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کوئی چال اونچا ہو کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر عاجزی، زاری، مسکینی اور فقیری کے عالم میں چلو. کوئی نوٹس ہی نہ لے تمہارا، کوئی سمجھے کوئی سادہ کوئی ایویں ہی بندہ جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ زمین پہ اللہ کہتا ہے پاؤں بھی نہ ایسے مارو، ایسے پاؤں تمہارے مٹک مٹک کے ہوتا ہے نا، ہیل پہنی ہو یا ویسے پاؤں زمین پہ مار کے چلنا کہ دوسرے کی نظر پڑے گی کون اس طرح زور زور سے پاؤں مار مار کے چل رہا ہے. اللہ کہتا ہے دوسروں کی توجہ یعنی نامحرموں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پاؤں بھی نہ زمین پہ مارو. کوئی چھنکار، کوئی تم نے پزیبیں، کوئی زیور ایسا پہنا ہے اس کی آواز بھی نہ آئے جس سے ان کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے.
फिर आगे अल्लाह कहता है अगर तुमने ऐसा किया था ना कभी, लिबास की और जेवर की और अपने जिस्म की आराइश कभी दिखाई थी ना, तो अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। एंड पे देखिए अल्लाह कह रहा है तौबा कर लो, अपनी इस्लाह और फलाह, तौबा कर लोगे ना तो फिर तुम्हारी इस्लाह भी होगी और तुम्हें फलाह भी मिलेगी। वो जो शुरू में अल्लाह ने कहा था ना, कद अफलहल मोमिनून, फिर तुम फलाह वाले बन जाओगे। देखिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी ऐसी थी तो अब मेरी अल्लाह ने मुझे माफ नहीं करना। देखिए अल्लाह ये सब कुछ बता के एंड पे कह रहा है कि अभी भी वक्त है, तो तूबू इलल्लाहि जमीआ, तौबा कर लो मिल के। ये देखिए ये जो हम जिक्र से पहले हम बैठ के जो तौबा करते हैं ना, वो यहाँ से सीखा हुआ है मैंने, कि देखिए हम कैसे कैसे लोग हैं, कोई गफलत में, कोई जहालत में जिंदगी गुजारी, कोई जुल्मत में, कोई मुनाफकत में, कोई भूला हुआ, कोई भटका हुआ, कोई किस तरह, कोई किस तरह। तो अल्लाह सारे बता के एंड पे अल्लाह खुद कह रहा है वतूबू इलल्लाहि जमीआ, अल्लाह कहता है मिल के तौबा करो। जब तुम मिल बैठ के तौबा करोगे ना, तो फिर अल्लाह कहता है अय्युहुल मोमिनूना लअल्लकुम तुफलिहून, मैं तुम्हें तुम्हारी फलाह कर दूंगा, यानी तुम्हारा तज़किया कर दूंगा और तुम्हारी इस्लाह कर दूंगा और तुम्हें फलाह मिल जाएगी। मिल के तौबा कर, ये नोट करें आप तरह पॉइंट। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। आयत 32 34 में अल्लाह निकाह की हुर्मत बयान कर रहा है कि निकाह यानी जायज़ ताल्लुकात, अल्लाह कहता है इसकी तरफ आओ, नाजायज़ ताल्लुकात और छुपी हुई दोस्तियां ना करो। आगे आयत 34 में अल्लाह ताला समझा रहा है क्या, अल्लाह ताला फरमाता है ये जो सारे अहकामात है ना, अल्लाह कहता है देखो मैंने कितने वाजे करके तुम्हें समझाए, हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं। रोशन का मतलब होता है वाजे, कोई ऐसी बात नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आए, पर्दे की हो, हदूद की हो, अल्लाह ताला की शराइत, अल्लाह ताला के ज़ाब्ते, अल्लाह का रास्ता, नबी का वसीला, सब अल्लाह कहता है मैंने तुझे रोशन साफ बता दिया है। तो अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें समझा भी दिया है, यानी जो पिछले लोग थे उनकी मिसालों से भी तुम्हें समझा दिया है। अल्लाह कहता है ये मिसालें, ये आयतें मैं तेरे सामने क्यों बयान करता हूँ, इसलिए मौइज़तल लिल मुत्तकीन, ताकि ये नसीहत तुझे मिले। अगर तू मुत्तकी है ना तो फिर तू नसीहत लेने वाला बन जाए, या नसीहत लेके तो मुत्तकी बन जा। अभी भी वक्त है। अल्लाह कहता है जो पिछली कौमें तबाह हुई ना, उनसे इबरत ले, और जो अब मैं तुझे आयतें बता रहा हूँ इससे नसीहत ले, ताकि तू मुत्तकी बन जाए, ताकि तेरी इस्लाह हो जाए, ताकि तू फलाह वाला बन जाए और अल्लाह की रिजा वाला बन जाए। देखिए ये है अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ। जब अल्लाह आपको सेहत की हालत में बुला रहा है ना, और अल्लाह आपको रास्ता दिखा रहा है, इसका मतलब है अल्लाह ने अपनी बख्शिश और रहमत का दरवाजा आप पर खोला हुआ है। अभी हमारे ऊपर कोई ऐसी अल्लाह की पकड़ और ऐसा अजाब नहीं आया कि हम बेड पे गिर जाते, हमारे जहन मफलूज हो जाता, जिस्म बेहिम्मत बेसकत हो जाता। वो अल्लाह कहता है मेरा अजाब था। फिर आप समझ रहे हो, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अजाब से पहले पहले अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। अल्लाह हमें अपनी रहमत की तरफ अब दौड़ने वाला बना दे। जो अहकामात अल्लाह ने समझाए हैं, अल्लाह हमें उस हदूद में जिंदगी गुजारने वाला बना दे। आप समझ आ रही है आपको। देखो अल्लाह के लिए आज हम फैशन छोड़ेंगे, मेकअप छोड़ेंगे, स्टाइलिश कपड़े पहन के छोड़ेंगे बाहर जाना, यानी अपनी आराइश ज़िबाइश छोड़ देंगे ना, तो अल्लाह कहता है मैं तुझे इस्लाह भी दूंगा, फलाह भी दूंगा। क्या कुछ अल्लाह दे रहा है, दायमी जन्नतों का। अल्लाह कहता है मैं तुझे वारिस बना दूंगा। आप इन घरों के वारिस बने हुए हो, आप वारिस नहीं हो इन घरों के। मैं आपको बताऊं, आपने ये घर छोड़ के जाने हैं, तो क्या ही अच्छा हो हम उससे पहले पहले अपने नफ्स को छोड़ दें, अपनी पसंद और अपनी खुशियां, राहतें, साइशें छोड़ दें, ताकि जब ये घर छोड़ के जाना हो तो वहां जाके हमें दायमी आराम मिले, दायमी इनाम मिले अल्लाह की बारगाह से, और फरिश्तों से सलाम मिले। आगे देखिए अल्लाह ताला आयत 35 में अल्लाह ताला अपने नूर की मिसाल दे के समझा रहा है। देखिए ये जो सारी आयात अहकामात है ना, अल्लाह कहता है इनमें नूर है। पता तुम्हें, जब तुम मेरी मानोगे, मेरे रास्ते पे चलोगे, मेरी पसंद के तरीके
عادات اور قوانین پر چلو گے نا تو تمہارے دل کو نور ملے گا۔ اب اللہ اس کی مثال دیکھیں دے رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کہتا ہے میں ہوں تو آسمان کا نور، آسمانوں اور زمینوں کا نور بے شک میرا ہے، لیکن یہ نور آتا کس سینے میں ہے؟ اب اللہ سینہ بتا رہا ہے، کون سا سینہ ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے اندر اللہ کا نور، آسمان اور زمین کا نور، اللہ کے تزکیہ طہارت کا نور، کون سا وہ قلب ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے نور کو جہاں اتارا ہے نا، وہ کسی پہاڑ پہ نازل نہیں کیا، قرآن کے نور کو، تزکیہ کے نور کو، خشیت کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اتارا تھا؟ اللہ کہتا ہے یہ میں نے قلب اطہر مصطفیٰ، یہ قلب مصطفیٰ، یہ جو طاق ہے، اس طاق میں جو اللہ کہتا ہے چراغ، یہ چراغ جو ہے نا یہ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے، یہ چراغ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ ہے نا، انہوں نے ہمیں بتایا یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ اطاعت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا رستہ دکھایا، قرآن پر عمل کرنا سکھایا، حدود قیود کا بتایا، سنت شریعت کا بتایا، مکروہ حرام کا ہمیں بتایا کہ ان سے بچو اور جو سنت شریعت ہے اس پر چلو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سینہ مصطفیٰ سے تمہیں یہ نور، تزکیہ والا جو نور ہے نا، ویسے تو دیکھیں کائنات میں اللہ کا نور ہے ہر طرف، وہ اللہ کی قدرت، عظمت، وہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا معرفت کا نور ہر طرف ہے، لیکن جو تزکیہ اور طہارت کا نور ہمیں ملا ہے نا، وہ قلب مصطفیٰ سے ہمارے قلب میں آیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ کرو گے تو سنت ہوگا، یہ پڑھو گے تو یہ قرآن ہوگا، میری پیروی کرو گے تو یہ شریعت ہوگی، میرے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو سینے کا نور جو ہے وہ قلب مصطفیٰ سے ہمارے سینوں میں آیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ چراغ ہے، اس چراغ کے اوپر فانوس ہے۔ فانوس کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، ایک تو قرآن کا نور اور پھر اسوہ حسنہ مصطفیٰ کا نور۔ اللہ کہتا ہے اس نور سے، یعنی یہ نور اللہ نور ہے، یعنی ایک میرے قرآن کے نور سے، ایک اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے نور سے۔ اب تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ہو۔ اس طرح جب زندگی گزارو گے نا تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نور کی شکل میں اور نور مصطفیٰ اور قرآن کے نور کی شکل میں نے تمہیں نور اللہ نور دیا ہوا ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک قرآن کی آیات کا نور اور ایک نبی کی ذات کا نور۔ اور لیکن اللہ اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ خدا مثالوں سے سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے، کیونکہ ہمیں ورنہ اللہ کے نور کی اور کہتے ہیں نا قلب کے نور کی، تزکیہ والے نور کی سمجھ ہی نہ آتی۔ اللہ کہتا ہے میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں اور میں ان لوگوں کو اس طرف لے کے آتا ہوں جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہے اسی کو سمجھ آتی ہے اور وہی اس نور کی طرف چلتا ہے۔ عام لوگوں کو تو کہتے ہیں نا اس نور سے کوئی بھی لگن اور محبت نہیں ہوتی، وہ نور سے ایسے گزر جاتے ہیں بے پرواہ ہو کے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت نمبر 36 میں اللہ کہتا ہے یہ نور ان لوگوں کے گھروں میں چمکتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ نور مصطفیٰ اور قرآن کا نور اللہ کہتا ہے ان گھروں میں چمکتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام۔ دیکھیں اس لیے ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں کہ قرآن کا نور اور اللہ کا نور گھروں میں بھی چمکے، گھروں میں بھی اور سینوں میں بھی اللہ کا نور چمکے، تاکہ ہمارے گھر اور ہمارے سینے نور و نور ہو جائیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے رجال، 37 آیت میں اللہ کہتا ہے رجال کون ہوتے ہیں؟ رجال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ، جو رجال وہ ہوتے ہیں جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، یعنی جتنے مرضی وہ دنیا کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، بچوں کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا وہ اصل میں رجال ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور عورتیں نہیں ہوتی لاچار پڑی ہوئی، بس جہاں
कहते हैं ना घर में ही बैठे रहे, बस नमाज पढ़ ली बैठे रहे, नहीं। अल्लाह कहता है मेरे वो बंदे, वो औरतें भी रिजाल हैं जो अल्लाह का जिक्र करती हैं हर वक्त, जो नमाज को कायम करते हैं। रिजाल वो होते हैं जो हर दम अल्लाह के जिक्र में रहें, नमाज को कायम करें और ज़कात दें, मन पाक नियत साफ रखें, यहाँ फून अल्लाह से डरने वाले होते हैं, कयामत की तैयारी, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर रहे होते हैं। ये रिजाल की सिफात होती हैं। वो दुनिया से नहीं डरते, वो लोगों से नहीं डरते, अल्लाह कहता है, ना वो हालात से डरते हैं। वो डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह से मुलाकात की तैयारी में होते हैं, वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र में जाते हैं, जिहाद करते हैं। जो भी हो उनकी तिजारत अल्लाह के साथ होती है, अल्लाह के साथ सौदा करते हैं, अल्लाह से रिजा का सौदा करते हैं और अल्लाह से जन्नत का सौदा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में रहते हैं और अल्लाह को राजी करते हैं और अल्लाह के नबी की पैरवी करते हैं, मन पाक नियत साफ रख के रिजाए खुदा इत्बाए मुस्तफ़ा में जो निकलते हैं ना, अल्लाह कहता है ये रिजाल है मेरे, ये मेरे बंदे हैं। देखिए इस दुनिया में रिजाल, इस दुनिया में रिजाल फिरते हैं, अल्लाह के बंदे, आप समझ रहे हो। वो औरतें होकर भी वो रिजाल होते हैं। हर मर्द रिजाल भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। कई मर्द जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपने काम से काम, अपनी बस कमाई घर पे लगाई और बस इतना। रिजाल कोई और होते हैं, मैं आपको बताऊं। रिजाल वो होते हैं जो दुनिया नहीं आखिरत कमा रहे होते हैं। रिजाल वो होते हैं जो दुनिया का घर नहीं जन्नत का घर कमा रहे होते हैं। रिजाल वो होते हैं, आम मर्द तो देखे दुनिया की कमाई, रिजाल को दुनिया की कमाई नहीं ईमान कमाने की फिक्र होती है, जन्नत में घर बनाने की फिक्र होती है, अल्लाह को राजी करने की फिक्र होती है, उन्हें हक पर मुजाहिदा करने की फिक्र होती है, उन्हें हर दम अतीउल्लाह अतीउ रसूल की, उन्हें हावन की फिक्र नहीं होती, मैंने हावन की इताअत करनी है। रिजाल वो होते हैं जो अतीउल्लाह अतीउ रसूल की फिक्र में होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करते हैं, जो मन पाक नियत साफ रखते हैं ना, ये अल्लाह के रिजाल। ऐसे जो रिजाल होते हैं ना, ये पहाड़ों की तरह, जैसे पहाड़ जमीन की मेहे है ना, इस तरह रिजाल अल्लाह के बुरहान होते हैं, अल्लाह के सतून, हक के सतून मीनार होते हैं। ये रिजाल बेमिसल बेमिसाल होते हैं, ये रिजाल पुर जमाल होते हैं। आपको समझ आ रही है। इनके जमाल, इनके अहलाक कमाल होते हैं और इनका जो किरदार है वो पुर जमाल होता है। आपको समझ आ रही है, क्योंकि ये रिजाल होते हैं, अल्लाह के रिजाल होते हैं, अल्लाह के मजबूत मीनार होते हैं, हक का रास्ता दिखाने वाले होते हैं, राहबर होते हैं, इसलिए बाकमाल होते हैं और बेमिसाल होते हैं। जैसे मर्जी इनके हालात हों, अल्लाह कहता है ये रिजाल ही रहते हैं, अल्लाह की तरफ ही रुजू करने वाले, अल्लाह को ही राजी करने वाले, इसलिए अल्लाह इन्हें रिजाल कह रहा है और इन्हें बेमिसल बेमिसाल कर देता है। आगे अल्लाह ताला देखिए मैं क्या समझा रहा है। अल्लाह कहता है ये अल्लाह ताला इनको फिर आसन अजर देता है, इनके लिए देखें अजर भी आसन है। और फिर अल्लाह कहता है मैं अपने फजल से इन्हें मजीद दूंगा, मजीद अपने फजल से इन्हें नवाजूंगा, क्योंकि इनका फिर अजर अल्लाह कहता है वल्लाहु यर्जुकु मन यशाउ बिगैरी हिसाब होता है। आपको समझ आ रही है। इन्होंने सिर्फ अपनी कहते हैं ना दुनिया के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, या मर्द बन के बस दुनिया की कमाई कर ली, या इन्होंने हाली औरत बन के जिंदगी नहीं गुजारी कि अपने हावंद को खुश किया, बस इतनी जिंदगी मेरी महदूद नहीं। अल्लाह कहता है ये मेरे रिजाल थे। तो फिर अल्लाह कहता है मैं इनका अजर भी इन्हें बेहिसाब दूंगा और आला अजर दूंगा और इन्हें मजीद बढ़ा के दूंगा। आयत 38 में आगे देखें अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि जो लोग दुनिया के लिए अमल करते हैं, दुनिया में ही कमाया, दुनिया में ही लगाया, दुनिया में ही खाया, उनके हिसाब फिर इधर ही बराबर हो जाते हैं। अल्लाह कहता है उनके अमाल फिर ऐसे ही हैं जैसे धोखा नहीं होता। जैसे कोई बंदा सहरा में जाए तो वो रेत को पानी समझता है, इनके अमाल शराब की तरह हैं, यानी एक धोखा, बेवकत, बेअजर, बेमानी है। और अल्लाह कहता है ऐसे लोग
तय दर तय अंधेरों में पड़े हुए हैं, यानी जुल्मत के अंधेरे, जहालत के अंधेरे, गफलत के अंधेरे, मुनाफकत के अंधेरे, फसादी, फितनेबाज, झूठे, मकार, अयार, तकब्बर वाले। अल्लाह कहता है ये तो अंधेरों में पड़े हुए लोग हैं। जो लोग अंधेरों में पड़े होते हैं ना, उनके अमाल फिर शराब की तरह है, धोखा है, उन्हें इसका कोई भी अजर मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, कुदरत की निशानियां दिखाते हुए 41 आयत से अल्लाह 47 में हम जाते हैं। अल्लाह कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, देखिए अल्लाह का फैसला सुने, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, जो लोग देखिए बाज लोग अल्लाह कहता है होते हैं, बाज लोग कहते हैं कि हम खुदा पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद अल्लाह कहता है उनमें से एक फिरका फिर जाता है, नहीं मानता। ऐसे लोग ईमान वाले नहीं हैं। देखिए हम जुबानी कहते हैं ना, अल्लाह ये समझा रहा है, जुबानी तो हम कहते हैं हमारा अल्लाह पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, नबी पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, लेकिन अल्लाह कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर जाके फिर जाते हैं, घर जाके अपने बच्चों के मुताबिक, खानदान के मुताबिक पलट जाते हैं, जैसे घर सब कर रहे हैं उसी तरह करने लग जाते हैं। अल्लाह की हदूद, अल्लाह के कवानीन और अल्लाह की शराइत और रसूलो जवाबित को नहीं मानते, घर जाके मन मौजी तन आसानी उसी तरह फिर हो जाते हैं। अल्लाह कहता है ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो फिर जाते हैं, फिर अल्लाह कहता है ये लोग ईमान वाले नहीं होते। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये ईमान वाले है ही नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल को राजी नहीं करते ना, अल्लाह कहता है ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। देखें अल्लाह आज फैसला सुना रहा है कि जो ईमान वाले नहीं है ना, उनके अमाल फिर शराब है, अमाल कर रहे हैं बेवजह, बेअजर, बेवकत। पीछे अल्लाह ने कहा है मैं उनके अमाल गुबार बना के उड़ा दूंगा। सोचें आप जरा, हम ईमान वाले हैं, जरा सोचें, क्या हमारी प्रायोरिटी, हमारी तरजीह अल्लाह और उसका रसूल है? क्या हम जो भी काम करते हैं हालिस रिजाए खुदा और हालिस पैरवी मुस्तफ़ा में करते हैं? अगर नहीं करते ना, तो फिर अल्लाह कहता है ऐसे लोगों के अमाल शराब हैं। आगे देखिए आयत 48 में अल्लाह ताला कहता है अल्लाह और उसके ये ऐसे लोग हैं जिनके, ये जो लोग हैं ना, अल्लाह कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते, ये अल्लाह कहता है ऐसे लोग व इज़ा और जब इन्हें बुलाया जाता है ना, जब इन्हें बुलाया जाता है, देखें ये बुलावा है, ये अल्लाह का बुलावा। ये मैं कहती हूँ पहले अल्लाह का बुलावा तो ले लो, फिर मदीने का बुलावा कहना मुझे आया है, फिर कहना कि मुझे अल्लाह ने अपने घर बुलाया, मैं हज कर रही, अल्लाह का बुलावा आया। पहले ये तो बुलावा लो जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, सिरातल मुस्तकीम पे चलो, तकवा का ज़ादे राह, मुजाहिदा, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करो, मन का तज़किया करो, हशीयत वाले बनो। ये बुलावा हम लेते नहीं है, पता नहीं बैठे बिठाए लोगों को कैसे मदीने के बुलावे। देखें यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, वा इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, ऐसे लोग अल्लाह कहता है जो ये हक के बुलावे नहीं लेते ना, इन्हें बुलाओ जब जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ना, ये देखें ये जो आज आपको बुला रहा है ना, ये अल्लाह और उसका रसूल आपको बुला रहा है, ये सही बुलावा है जो सिरातल मुस्तकीम का है, जो कुरान से तज़किया और हिदायत लेने का है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का है, ये हकीकी बुलावा है। तो अल्लाह कहता है ये जो लोग होते हैं ना, जो लोग अल्लाह जब इनको बुलाया जाए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ताकि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा फैसला करे। ये देखिए ये जो मैं आज आपको कुरान से पढ़ के सुना रही हूँ ना, ये अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है। अल्लाह कहता है तज़किया वाले बनो, तहारत वाले बनो, हशीयत वाले बनो, सिरातल मुस्तकीम वाले बनो, तकवा का लिबास पहनो। आपको समझ आ रही है? अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करो, पहले ये करो, फिर अल्लाह कहता है तुम मेरे घर आना। पहले जो मैं कह रहा हूँ ना, होमवर्क दे रहा हूँ, पहले ये होमवर्क करो। अगर ये होमवर्क किए बगैर, आप सोचो कोई बच्चा स्कूल चला जाए दौड़ के और जाके कहे मैं आ तो गया, बड़ा ही खुश नसीब हूँ, उसका आना किस काम का है? अल्लाह कहता है पहले ये जो मैं तुझे बुला रहा हूँ ना, इस तरफ आ,
लेकिन अल्लाह हमें बता रहा है जो लोग ईमान वाले नहीं ना होते, मन के मुनाफिक होते हैं, जब उन्हें कुरान के लिए बुलाया जाए, जब उन्हें हदीस पाक के लिए बुलाया जाए, जब उन्हें मुजाहिदे के लिए बुलाया जाए, जब उन्हें तज़किया तहारत के लिए बुलाया जाए, तो अल्लाह कहता है ये लोग नहीं आते, नहीं आते ये लोग। कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है, हमारे हालात ही नहीं है, अभी तो नहीं हो सकता, अभी नहीं मैं कर सकती। अल्लाह कहता है ये लोग नहीं आते। इनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को बुलाया जाए तो मुंह परे कर लेते हैं। देखिए अल्लाह ये तक हमें बता रहा है। आज आप सोचें कितने लोग हैं जिनको हम कुरान की क्लास की तरफ बुलाते हैं, हदीस पाक के दर्स की तरफ बुलाते हैं, जिक्र की महफिल के लिए बुलाते हैं, मुजाहिदे के लिए बुलाते हैं, वो क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं हमें घर के बड़े काम हैं, हम नहीं आ सकते। तो अल्लाह कह रहा है ये जो अल्लाह के बुलावे की तरफ नहीं आते ना, ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं, इन्हें अल्लाह से मिलने की उम्मीद है ही नहीं, इन्हें नबी से मोहब्बत या नबी की पैरवी का शौक है ही नहीं, इन्हें सिरातल मुस्तकीम और तकवा के ज़ादे राह की शौक है ही नहीं, इसलिए इनके पास टाइम ही नहीं होता, ये आते ही नहीं है। देखें जरा अल्लाह क्या कुछ समझा रहा है। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें कह रहा है आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला कहता है अगर हक इनको पहुंचता, अगर ये हक इनको पहुंचता तो इसकी तरफ मुती होकर चले आते। यानी अल्लाह ये कह रहा है अगर दुनिया में इन्हें कोई फायदा पहुंचता ना, कोई मतलब की बात होती तो फिर ये मुती हो के चले आते हैं, कोई इनके मुफाद की बात हो फिर चले आते, किसी बात में इन्हें अपना फायदा नजर आए ना वहां चले जाएंगे। लेकिन वैसे इन्हें हक की तरफ तज़किया तहारत और अल्लाह की इताअत और रसूल की पैरवी की तरफ बुलाओ तो ये नहीं आते। देखिए अल्लाह फितरत भी बता रहा है ऐसे लोगों की जो मोमिन नहीं है। फिर आगे देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि इनके दिलों में बीमारी है असल में। देखिए अल्लाह ये तक बता रहा है। हम समझते हैं किसी को क्या पता मेरे दिल में क्या है, यही तो बात है। अल्लाह और अल्लाह वालों को सब पता होता है आपके दिलों में क्या है। मैं आपको बताऊं, कभी इस धोखे में ना रहिएगा कि ना किसी अल्लाह वाले को मेरा पता है ना किसी और को पता है। देखिए जब अल्लाह बताता है और जब हक वाले देखिए अल्लाह के कलाम में तदब्बर तफक्कर करते हैं तो उन्हें भी पता लग जाता है किसके दिल में बीमारी है, कौन मुनाफकत वाला है, कौन रियाकारी वाला है। देखिए इस आयत में अल्लाह दिखा रहा है, आपको भी पता चलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है इनके दिलों में बीमारी है, फी क़ुलूबिहिम मरद, और वो बीमारी पता क्या है? अल्लाह बता रहा है वो बीमारी है इरताबु मिरताबु, शक की बीमारी, शक की बीमारी है। अल्लाह कहता है इनके दिलों में, जो अल्लाह ने शुरू में कुरान के कहा था ना ला रईब, इस कुरान में शक ना करना। अल्लाह कहता है ये जो लोग हक की तरफ आते नहीं है, दावत दो तो आते नहीं है, तज़किया कुरान के तज़किया नहीं लेते, सिरातल मुस्तकीम की तरफ नहीं आते, मुजाहिदा नहीं करते, रसूल की इताअत और अल्लाह को राजी नहीं करते ना, अल्लाह कहता है इनके दिलों में ना असल में एक मर्ज है। पहले तो अल्लाह कह रहा है एक मर्ज है, ये बीमार है, ये अल्लाह ताला कह रहा है ये असल में रूहानी बीमार है, ये लोग नफ्सी बीमार है। देखिए जिस्मानी बीमार हम होते हैं तो हम डॉक्टर के पास दौड़े जाते हैं, हमें पता ही नहीं, रूहानी बीमार को भी किसी तबीब के पास लेके जाना चाहिए। ये जो नफ्स हमारा जब मोटा ताज़ा हो जाता है ना, तो ये नफ्स हमें जो ना रूह के ऊपर जब गालिब हो जाता है तो रूह बेचारी बीमार हो जाती है, रूह कमजोर हो जाती है, हमें पता ही नहीं। तो अल्लाह कहता है इनके दिलों में मर्ज है और वो मर्ज है शक का। इन्हें यकीन ही नहीं कि हमारी रब से मुलाकात होनी है, इसलिए ये लोग अल्लाह कहता है ये बेखौफ है, इनके दिलों में बीमारी है, शक में है, इनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल उनके हक में जुल्म करेंगे। देखें जरा अल्लाह क्या कुछ बता रहा है। अल्लाह कहता है ये जो लोग हक की दावत दें नहीं आते ना, ये जो कुरान के लिए लोगों को बुलाए नहीं आते ना, ये जिन्हें हदीस की तरफ बुलाओ समझो नहीं आते ना, ये पता क्यों नहीं आते? ये कहते हैं जो अल्लाह कह रहा है वो करना पड़ जाएगा, वो मुश्किल लगेगा, जो रसूल समझा रहा है फिर अमल करना पड़ जाएगा। कई औरतों को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ, हमें ना हम इसलिए नहीं आते, फिर हमें अमल करना पड़ेगा, और हम जब करेंगे पहले जो पता है उस पर पहले अमल कर लें फिर हम आएंगे। तो अभी हम अमल नहीं ना कर सकते, तो अभी इसलिए हम आते नहीं हैं, क्योंकि हामद इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हालात नहीं है, तो इसलिए हम नहीं आते, हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि पहले हम घर को राज़ी कर लें, हामद को राज़ी कर लें। तो अल्लाह कहता है ये लोग समझते हैं
कि अल्लाह और उसका रसूल उनके ऊपर कोई जुल्म कर देगा, पता नहीं कोई ज्यादती कर देगा, कोई मुश्किल उनके लिए आ जाएगी। अल्लाह कहता है ना अल्लाह का रसूल ना हक वाले इन पर जुल्म करते हैं, ये तो खुद ही जालिम है। अल्लाह कहता है घर बैठे नफ्स परस्त शैतान की पैरवी कर रहे हैं, तानासानी मन मौजी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह कहता है ये अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे हैं। घर में जब मर्जें दर्दें आएंगी ना इनको, फिर भागेंगे घर छोड़ के। अभी इन्हें नहीं पता उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। नफ्स की पैरवी, नफ्स परवरी और तन आसानी, ये जो घर बैठे मन मौजी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, अल्लाह कहता है ये अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इन्हें इस जुल्म का पता चलेगा। देखिए जितनी भी जालिम कौमें थी ना पीछे गुजरा है, अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता है मोमिनों की तो ये बात है। देखिए अल्लाह अब मोमिनों की पहचान करवा रहा है। असली मोमिन कौन है? मोमिनों की तो बात ये है जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उन्हें बुलाया जाता है, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, ताकि अल्लाह और उसके रसूल से वो फैसला करें, यानी रहनुमाई लें, हिदायत लें, नसीहत लें, तात लें, तो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? समेअना व अतौना, हमने सुन लिया, हम मान लिया। मोमिन की तो ये शान होती है। मोमिन कभी भी सरकशी नहीं करता, सरगोशी नहीं करता, बागी नहीं होता, रियाकारी नहीं करता। मोमिन तो ये कह रहा होता है आज सुना है ना, अब इस पर अमल करेंगे। समेअना व अतौना, अल्लाह कहता है ये है मोमिन। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये फलाह वाले हैं। वो जो शुरू में फरमाया था ना, कद अफलहल मोमिनून, ये हैं मोमिनून, फलाह वाले। तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, या अल्लाह हमें भी समेअना व अतौना वाला बना दो। हम समेअना व असोइना वाले ना बने, सुन के तो नाफरमानी, सुन के भी सरकशी, सुन के भी बेपरवाही, सुन के भी बेरगबती, ऐसे ना बने मौला। अब हमें समेअना व अतौना वाला बना दे, ताकि हम फलाह वाले बन जाएं, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा वाले बन जाएं। देखिए कितनी प्यारी बातें, कुर्बान जाएं। यानी सूरत नूर में देखिए, नूर से ये नूर मिल रहा है। ये नूर से नूर कब का आया हुआ है, हम फिर भी शैतान के फतूर में ही पड़े रहते हैं। क्यों? यही तो जुल्म है, यही तो जुल्म है। जब हम शैतान के फतूर में पड़े रहते हैं तो अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। अल्लाह कहता है समेअना व अतौना वाले बन के ये सौदा लेके, पीछे याद है आपको आयत गुजरी, खुशियां मनाओ जिन्होंने ये सौदा ले लिया, अल्लाह की रिजा और नबी के इत्तबा का सौदा ले लिया, उन्होंने जन्नतों का सौदा ले लिया है। अब खुशी मनाओ, जो मर्जी तुम्हारे हालात हैं, तुमने गम नहीं करना। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। आयत नंबर 51 से आगे अल्लाह ताला फरमाता है 52 में, यही तो वो लोग हैं, अल्लाह कहता है फाइजून वाले होंगे। फाइज का मतलब होता है बड़े बड़े ओहदों दर्जों में, ये आखिरत में मुकामात पर फाइजून होंगे। आज मुफलिहून, मोमिनून, कल को फाइजून। सुभान अल्लाह। कौन होंगे ये फाइजून? देखिए अल्लाह पहचान करवा रहा है, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। हाय सुभान अल्लाह। रिज़ाए खुदा, ये देखिए मैंने यहाँ से सीखे हैं ये सारे। रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफ़ा। अल्लाह कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाले होंगे ना, वह यख्शल्लाह, और अल्लाह से डरने वाले होंगे, हदूदुल्लाह वाले। यख्शल्लाह का मतलब होता है हदूदुल्लाह वाले। हर काम करने से पहले सोचेंगे ये जायज़ है कि नहीं, शरीयत में ये अल्लाह को पसंद है कि नहीं। अपनी पसंद नहीं देखेंगे, मेरी पसंद का डिज़ाइन, मेरे पसंद का कपड़ा, महंगे से महंगा, अच्छा से अच्छा, नहीं, अपना पसंद और स्टाइल नहीं देखते। वो यख्शल्लाह,
हदूदुल्लाह, हशियतुल्लाह वाले होंगे। ये कहेंगे, ये फिक्र करेंगे कि ये पहनना ठीक है, जायज़ है, सही है, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है, अल्लाह की हदूद के मुताबिक है कि नहीं। ये होता है यख्शल्लाह। उनके दिल में हर वक्त खशियतुल्लाह, अल्लाह का खौफ होता है। वायत्ता, फिर आगे अल्लाह ताला कहता है वायत्तक़ी, और अल्लाह से डरते हैं वो, परहेज हर मामले में वो कहते हैं हदूद कयूद का ख्याल रखने वाले। दुनिया में हदूद कयूद का ख्याल रखने वाले, इसी बात पे जोर देने वाले, जो भी काम करो अल्लाह के असूलों ज़वाबित कवानीन और शराइत के मुताबिक करो। देखिए ये 11 नुक्ता नोट करें, मैं आपको पहले दिन से कहती आ रही हूँ, जिंदगी गुजारो सिरातल मुस्तकीम पर, जिंदगी गुजारो अनमता अलैहिम की सोबत में, जिंदगी गुजारो तकवा का ज़ादे राह जमा करते हुए, जिंदगी गुजारो तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह करते हुए। आप समझ रहे हो? तो ये अल्लाह ने हदूद कयूद असूलो ज़वाबित, ये अल्लाह ने कवानीन शराइत हमें हर चीज़ के समझाए हुए हैं। लेकिन शैतान पता क्या करता है? शैतान कहता है अपनी मर्जी कर, जो भी काम कर अपनी मर्जी का कर, जो भी पहन अपनी मर्जी का पहन, जो भी बोल अपने, जो तेरे दिल में आया ना बोल दे, ना डर किसी से, डरना बिल्कुल नहीं है, बोल दे, बेअदबी कर, गुस्ताही कर, जुबान दराजी कर, जो तेरा दिल करता है ना कर। शैतान हमें हदूद कयूद से निकालता है, असूलो ज़वाबत अल्लाह के कवानीन और शराइत से निकालता है। असल में शैतान हमें बेहया और बेपर्दा और अल्लाह की रहमत से हमें दूर करता है। बेहयाई और बेअदबी से वो हमारे से तकवा छीन लेता है। जो बेहया होता है ना बंदा, ये बात नोट करें, जिसके अंदर बेहयाई और बेअदबी आ जाए ना, ये दो चीजें शैतान में आई थी। सबसे पहले शैतान के अंदर बेअदबी थी अल्लाह की, और बेहयाई थी, डटाई से अल्लाह के आगे खड़ा हो गया। जिसके अंदर बेहयाई और बेअदबी आ जाए ना, समझ ले उसके अंदर शैतान की सरकशी है, बीमारी है। ये पीछे अल्लाह ने बताया ना, इनके दिलों में बीमारी है, असल में ना मर्ज है। इसलिए इस मर्ज की वजह से ना ये आपे से बाहर हो जाते हैं, ये हदूद में नहीं रहते, ये तकवा की हदूद में नहीं रहते। लेकिन जो तकवा की हदूद वाले होते हैं ना, सबसे पहले वो अतीउल्लाह अतीउ रसूल वाले होते हैं, उम्मती होते हैं, फिर मुत्तकी होते हैं, फिर हशियत इलाही वाले होते हैं। हर काम हदूद कयूद में नपे तुले अंदाज से, सोच समझ के, फिक्र से करते हैं। ये नहीं करते मेरी मन मौजी, मेरा दिल किया, मेरा जो अच्छा लगा, तन आसानी मन मौजी, ऐसे नहीं करते। हर काम वो अल्लाह की खुशी और नबी की मर्जी और कुरान की पैरवी से करते हैं। ये मोमिन होते हैं। और अल्लाह कहता है दुनिया में ये तुम्हें झुके हुए आजिज मिस्कीन गरीब नजर आते हैं ना, लेकिन आखिरत में पता क्या, फ़उलाइका हुमुल फाइजून, बड़े बड़े दर्जों पर, ओहदों पर ये फाइज होंगे। इन्हें मैं शिफात का ओहदा दूंगा, ये शिफात करने वाले होंगे। आपको समझ आ रही है? ये अल्लाह के आगे शिफात करने वाले होंगे, ये सौलहीन मुखलसीन, इन्हें मैं बड़े बड़े महल्लात दूंगा, इन्हें अर्शे इलाही के तले फायज मुकाम दूंगा। लेकिन ये कौन होने, दुनिया में पहचान क्या है? युती अल्लाह व रसूलहू, हर काम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, व यख्शल्लाह, हर काम हदूदुल्लाह में करना है, हर वक्त यत्तकी, अल्लाह से डरना है। आपको समझ आ रही है? तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें मोमिनून मुफलिहून फिर फाइजून तक लेके जाऊंगा। फाइजून पता कौन होते हैं? मुकर्रबून, मुकर्रबून, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे। आपको समझ आ रही है? आपको गहरी बात समझ आई है? जैसे जैसे दर्जा बुलंद होता जाता है ना, वैसे वैसे दुनिया में हदूद कयूद तंग होती जाती है, सख्ती होती जाती है। ज्यादा बंदा हदूद वाला, ज्यादा बंदा अदब वाला, आजजी वाला, जारी वाला, मिस्कीनी वाला,
ज्यादा बंदा सादगी वाला, हुजूरी वाला होता जाता है, जितना दुनिया में होता जाता है हुजूरी मिस्कीनी वाला, उतना ही अल्लाह कहता है आखिरत में उसके दर्जात और मुकामात बुलंद होते जाते हैं। आप समझ रहे हो? और ये रिजाल होते हैं, रिजाल मुकर्रबून तक जो जाते हैं। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला यही समझा रहा था। 50 तक हम 50 में फिर अल्लाह ताला मुनाफिक लोगों का जिक्र कर रहा है। ना कोई सौदा लेते हैं, ना अल्लाह से कहते हैं, ना कोई ये अल्लाह की रज़ा के, जन्नतों के, किसी चीज़ के ये मुनाफिक लोग तालब नहीं होते। अल्लाह कहता है ये शक में पड़े रहते हैं। मुनाफिक लोग शक में ही पड़े रहते हैं, कोई मुजाहिदा नहीं करते। लेकिन जो जो मोमिन होते हैं वो यकीन वाले होते हैं, वो मुफलिहून होते हैं, फाइजून होते हैं। आगे देखें आयत 53 में अल्लाह ताला कुछ लोगों की फितरत हमें समझा रहा है। अल्लाह कहता है कुछ लोग होते हैं जो जुबानी दावे करते हैं, जुबानी बातें करते हैं, जुबानी कस्में खाते हैं, जुबानी अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ कहते हैं। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा तुम्हें इतने बड़े बड़े दावे करके लोगों को अपने मुकामात बताने का, अपनी अहमियत जताने का क्या फ़ायदा। अल्लाह कहता है बड़ी बड़ी कस्में खाने का क्या फ़ायदा। आप समझ रहे हो? अल्लाह कहता है इससे बेहतर था तुम सिर्फ एक काम करते, क्या? ताअतुम मारूफा, इताअत करने वाले होते। सिर्फ तुम इताअत कर लेते ना अच्छे तरीके से, तो इतने दावे और इतने कस्में खाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। देखिए अल्लाह क्या क्या बातें समझाता है। ताअतुम मारूफा, ताअत की तरफ, इताअत की तरफ तवज्जो कर, यानी अदब वाला बन, हदूद वाला बन, दावों वाला और बातों वाला ना बन। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। आयत 54 में हम जाते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। देखिए कितनी बार ये आ रहा है। अल्लाह कुल अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। देखिए कोई दावे, कोई बातें, कोई काम नहीं आनी, कोई चीजें काम नहीं आनी। कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को बैठे बिठाई कह रहे होते हैं, मैं बड़ी पहुंची हुई हस्ती, तो बड़ी मेरा मुकाम और दर्जा, कोई चीज काम नहीं आनी। अल्लाह कह रहा है काम आएगा तो क्या, इन्हें बता दो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, समेअना व अतोना, जो करने का काम है वो करो। अल्लाह बार बार देखें समझा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर मुंह मोड़ोगे, अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर इसका कोई जिम्मा नहीं है। जो तुम कर रहे हो तुम्हारा कोई जिम्मेदार पुरसाने हाल होगा ही नहीं। जितने मर्जी दावे करते रहो, अल्लाह कहता है तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, पैरवी करोगे, सीधा रास्ता लोगे, तो फिर अल्लाह कहता है ये फिर रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह कहता है अगर रसूल का पहुंचाया हुआ उस पर पहुंचोगे, जो रसूल ने पहुंचाया है उस पर पहुंचोगे, तो फिर रसूल तुम्हारी शिफात को पहुंचेगा, तुम्हारी मदद को पहुंचेगा। लेकिन आज तुम वो करो जो रसूल कह रहा है, जो अल्लाह जिस तरफ बुला रहा है, अतीउल्लाह अती रसूल, समेअना व अतोना। आप समझ रहे हो? वरना तो अल्लाह कहता है तुझे बोझ उठाना पड़ेगा, अपने अमाल का और गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इसी में देखिए अल्लाह ताला ये भी समझा रहा है हिदायत वाले कौन हैं। देखिए कितने लोग हैं जो हिदायत के दावे करते हैं, मैं हक पे हूँ, मैं सही हूँ। अल हुदा वाले कहते हैं हमारा तो नाम ही अल हुदा है, हम तो हिदायत के ठेकेदार हैं, तो हम जिसको पढ़ाएंगे तो हम सही हिदायत देंगे। देखिए अल्लाह हिदायत की जब बात करता ना, अल्लाह पहले अतीउल्लाह व अतीउ रसूल की बात कर रहा है। इस आयत में देखिए अल्लाह ताला ने कहा है व इन तुतीहू, अल्लाह कहता है अगर तुम इनकी इताअत करोगे ना, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे ना, तो फिर अल्लाह देखिए साथ ही कह रहा है तहतदू। ये नुक्ता कह रहा है, नोट करें। हिदायत क्या है? अल्लाह सबसे पहले कहता है अतीउल्लाह अतीउ रसूल, फिर आयत के मिडल में अल्लाह कहता है तुतीऊहू, अगर तुम इताअत करोगे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की हर काम, सुन्नत शरीयत, सुन्नत रसूल, शरीयत रसूल, इताअत रसूल, तरीका रसूल, मोहब्बत रसूल, इत्तबा रसूल में जब तुम हर काम करोगे ना, तो अल्लाह कहता है तहतदू, फिर तुमने हिदायत को पा लिया।
ये गहरा नुक्ता नोट करें। जो तहता दून है वही मोमिनून है, जो मोमिनून है वही मुफलिहून है, जो मुफलिहून है वही आखिरत में फिर फायजून होंगे, फिर यही फायजून जो है ये मुकर्रबून होंगे। आपको समझ आ रही है? सिलसिलावार हर चीज अल्लाह कदम ब कदम अल्लाह हमें समझा रहा है। ये है कुरान से दर्जे लेना, इसको कहते हैं कुरानी दर्जात और मुकामात लेना। लोग तो अपने दर्जे मुकामात जुबानी बना के खुद ही बैठे होते हैं, खानदानी दर्जे जी, पैदाइशी दर्जे। आप समझ रहे हो? दर्जे अगर लेने हैं ना तो वो कुरान से इस तरह लो। अल्लाह कहता है पहले इताअत वाले बनो, फिर तुम क्या कहते हैं इस्लाह वाले बनो, फिर फलाह वाले बनो, फिर मोमिन और फिर मुकर्रिब। ये तरतीब को देखे हमने फॉलो करना है। ये मैं कहती हूँ जो अल्लाह ने तरतीब बताई है ना उस पे चलो। अपनी ख्याली जन्नत और ख्याली दर्जे ना बनाओ, मैं जन्नती, मैं बख्शी हुई तो मैं बड़ी पहुंची हुई। ये लोग ख्याली जन्नतें बना के मैंने अक्सर लोगों को देखा बैठे रहते हैं और अपनी समझते हैं कि लोगों के आगे मेरी बड़ी इज्जत है। मैं आपको बताऊं ऐसी इज्जत आपको मिल भी जाएगी ना जो खुद आपने बनाई होगी, जाती और खानदानी और निजी और ख्याली। ये इज्जत वक्ती है, फिर अल्लाह के पास पेश होना है। अल्लाह फिर कहता है, आगे गुजरा है कुरान पाक में भी, अल्लाह उनके सरों के ऊपर आगे भी आएगा और पीछे भी गुजरा है, खोलता हुआ पानी डालेगा, कहेगा चख मजा उस इज्जत का जिस दुनिया में करवाया करता था। तुझे बड़ी इज्जत चाहिए थी ना, तेरे दिमाग में तकब्बुर था, इज्जत का तेरा गरूर था ना, चख मजा आप। ये वो इज्जत है जो तू दुनिया में लोगों से करवाना चाहता था। लोग मेरी इज्जत करें, मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, मेरे वाह वाह करें, मेरे इस्तकबाल करें, चख मजाक उस इज्जत का। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ इज्जत वो नहीं होती जो दुनिया करे, इज्जत वो है जो कुरान हमें दे रहा है, जो रहमान हमें दे रहा है, जो फरिश्ते सलाम करेंगे, जो रब सलाम करेगा, इज्जत वो है। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ, मेरी तो नियत ही होती है कभी दुनिया की इज्जत के तलबगार मत बनो। और अल्लाह ने भी कहा है इज्जत उसकी है जो तकवा वाला है। दिखावा वालों की कोई इज्जत नहीं होती, रियाकारी करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, दावे करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और अगर हो भी तो क्या होती है, 2 दिन की इज्जत। क्या फायदा 2 दिन की इज्जत का, आगे दायमी अजाब। आगे देखिए अल्लाह ताला आयत 54 से हम अब तेजी से जाएंगे आगे। अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है 55 में, गलबा फतह ईमान वालों को होगी। देखिए अल्लाह फिर समझा रहा है वही लोग कामयाब होंगे जो ईमान वाले हैं। फिर आगे 58 में अल्लाह पर्दे के अहकामात और हद बलूगत के अहकामात बयान कर रहा है कि मतलब इजाज़त लेके आना चाहिए और पर्दे का ख्याल करना चाहिए और मिलने के आदाब और खाने के आदाब और हदूद और क़यूद के आदाब, ये सब अल्लाह 61 तक अल्लाह समझा रहा है। फिर आगे 62 में भी अल्लाह ये कह रहा है मोमिन इजाज़त लेकर, मोमिन वो होते हैं अगर उन्हें कहीं जाना पड़ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तो कभी छुप के नहीं निकलते। अल्लाह कहता है देखिए ये भी मोमिनों की सिफात में से एक सिफत है। क्या? मोमिन कभी छुप के सरगोशी करके नहीं निकलता। अल्लाह कहता है मोमिन जो होते हैं, ये देखें, मोमिन पैगंबर के बुलाने को ऐसा ख्याल ना करें। पहले तो अल्लाह अदब सिखा रहा है, पहले तो अल्लाह कह रहा है ना तुम्हारा मेरे महबूब की बारगाह में आना आम है, ना मेरे महबूब का बुलाना आम है, और ना तेरा जाना आम होना चाहिए कि तू चुपके से खिसक जाए। अल्लाह कहता है नहीं, मोमिनों को पैगंबर के बुलाने को अल्लाह कहता है ऐसा ख्याल ना करो। ये देखिए हमें जो बुलाया जाता है, ये जो मैं आपसे कहती हूँ, ये हमारी जो क्लास है, ये हमारा मुजाहिदा है, तो जाहिदू फी सबीलिल्लाह। ये कुरान अल्लाह का दस्तरख्वान, अल्लाह का बुलावा है। ये हमारी हदीस पाक की क्लास, ये नबी का बुलावा है, दामने रहमत मुस्तफ़ा में आ जाओ। आपको समझ आ रही है? तो अल्लाह कहता है जो ऐसा देखिए यहाँ बुलावे के अल्फाज भी हैं। मैं कहती हूँ लोग ये बुलावे क्यों नहीं लेते हैं? ये देखिए फिर लिखा हुआ है ला तजअलू दाआ बुलाना दुआ अर रसूल। अल्लाह कहता है ये जो रसूल का बुलाना है ना, ये जो हमारा हक के लिए आना है, ये हमारा मुजाहदे के लिए आना है, ये अल्लाह कहता है ये जो बुलाना है ना, ये आम बुलाना नहीं होता। ये मैं आपको दोस्तियां करने के लिए नहीं बुला रही, ये मैं आपको गपशप करने के लिए नहीं बुला रही होती,
ये मैं आपको खाने की दावतें नहीं देने के लिए बुला रही होती, ना कपड़ों के डिजाइन चेक करवाने हैं, ना ज्वेलरी चेक करवाने, पार्टियों के लिए आपको बुला रही हूँ नहीं। जो बुलाना देखें अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है ना, अल्लाह कहता है ला तजअलू, ना समझो ऐसे बुलावे को, दाअर रसूली, जो रसूल तुम्हें बुला रहा होता है ना, बैनकुम, अपने दरमियान, का दुआ बादिकुम बादा, अल्लाह कहता है ये ऐसा बुलावा नहीं जो तुम आपस में एक दूसरे को बुलावे दे के तो घरों में बुलाते हो और आम मिलते हो एक दूसरे से, समझ रहे हैं? अल्लाह अदाब सिखा रहा है। अल्लाह कहता है रसूल का बुलावा आम बुलावा नहीं है, रसूल का बुलावा असल में अल्लाह का जन्नत का बुलावा है, ये तेरी बख्शिश का बुलावा है। तो अल्लाह कहता है इस बुलावे को आम ना समझो, पैगंबर के बुलाने को आम ना समझो जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। और आप यहाँ जरा एक मिनट के लिए सोचें, हमारे जो हमारे यानी जो हमारे जो होते हैं इमाम और शेख, वो हमें यहाँ पर ये बात समझाते हैं इस आयत के तनाजुर में कि नबी का तो बुलाना आम नहीं है, नबी की जात आम कैसे हो सकती है। जो लोग कहते हैं वहां भी इस्तगफिरुल्लाह कि नबी आम बशर है, अल्लाह तो कह रहा है नबी के बुलाने को भी आम ना समझो, तुम नबी की जात को आम कह रहे हो। इस्तगफिर, आप समझ रहे हो? नबी की जात तो अल्लाह के अनवार का मरकज और महवर होती है। नबी तो वो करता है जो अल्लाह हुक्म दे, नबी तो वो कहता है जो अल्लाह चाहे, नबी तो उस पे चलता है जो अल्लाह को पसंद है। नबी तो सरापा नूर होता है, सरापा अल्लाह की रिजा होता है, इत्तबिऊ ओ हा होता है, जो अल्लाह वही करता है नबी उसका पैरोकार होता है। कहाँ नबी की जात और हम कहें कि वो आम बशर, ये गुस्ताही है बहुत बड़ी, ये बेअदबी है। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कुरान आम किताब है। कोई सोच सकता है कि कुरान एक आम किताब है? जो लोग कहते हैं नबी आम बशर है, वो यही कह रहे हैं कि कुरान एक आम किताब है, जमजम एक आम पानी है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कभी भी हो नहीं सकता। देखें आम पहाड़ में और गारे हिरा के पहाड़ में कितना फर्क है। गारे हिरा आम पहाड़ नहीं है, जहां अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ, तो नबी की जात आम कैसे हो सकती है। ये नुक्ते नोट करें, ये आपकी तरबियत के नुक्ते हैं। आपको समझ आ रही है? ये आपको फितनों से बचाने के नुक्ते हैं, ये नुक्ते आपको फितनों से बचाएंगे, क्योंकि ये फितने बहुत फैले हुए हैं बाहर। आगे अल्लाह ताला कहता है नबी के बुलाने को आम ना समझो, बेशक खुदा को ये लोग खुदा को मालूम है जो तुम में से आंख बचाकर चल देते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए। देखिए अल्लाह, ये आयत में बज़ाहिर किसी को आम समझ नहीं आएगी अल्लाह क्या कह रहा है, लेकिन इस सारी आयत में मैं आपको बताऊं अल्लाह मुकाम मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, रहमत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा अल्लाह हमें समझा रहा है। मेरे महबूब की ना बात आम है, ना जात आम है, ना उसकी मोहब्बत, ना उसकी कुर्बत, कुछ भी आम, ना उसका काम आम है। जो नबी के काम में लग जाता है वो काम मुजाहिदा बन जाता है, जो नबी के रास्ते पे चल पड़ता है वो शरीयत बन जाता है, सिरातल मुस्तकीम बन जाता है। जो नबी की जिक्र करता है वो सना बन जाती है। नबी का कुछ भी आम नहीं है। देखिए जो नबी के पास बैठते थे वो भी आम नहीं, उनको भी सहाबी बन जाते हैं। और जो नबी की पैरवी करते हैं वो भी आम नहीं है, वो उम्मती बन जाते हैं। बने तो सही, पर बात तो ये है। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह कहता है जो लोग नबी की मौजूदगी में ऐसे खिसक जाते हैं, जैसे आम महफिलों से हम खिसक जाते हैं ना, पीछे से ही निकल गए चुपके से। अल्लाह कहता है जो नबी की मौजूदगी में, नबी की सोहबत से पीछे से खिसक जाते हैं ना, अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ, उनको डरना चाहिए अल्लाह से, यानी नबी के अदब का ख्याल करो। कौन तुम्हारी किसकी महफिल में बैठे हुए, अल्लाह अदब सिखा रहा है। नबी से डरना, नबी के मुकाम और अजमत को जहन में रखो। अल्लाह कहता है अगर तुम इस तरह खिसक खिसक के जाओगे ना, नबी से आंख बचा के निकल जाओगे, तो अल्लाह कहता है डरो अल्लाह के अजाब से। देखो अल्लाह कैसे डरा रहा है। अल्लाह कहता है तुसीबहुम फितनतुन, तुम्हारे ऊपर कोई फितना, कोई आफत आ सकती है। ये ना समझो कि नबी को पता नहीं चला, मैं आंख बचा के खिसक गया हूँ। अल्लाह कहता है तुम बाहर जाओगे ना, किसी फितने में पकड़े जाओगे।
किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे, नबी की बारगाह से आम उठ के ना आ जाओ, अदब से उठ के आओ, इजाजत लेके आओ। जब तुम नबी से इजाजत लेके आओगे ना, तो फिर अल्लाह अपने महबूब से कहता है इन्हें कोई मजबूरी होगी, कोई काम जरूरी होगा, तो आप इनके लिए दुआ कर दें। फिर तुम्हें फितना नहीं मिलेगा, नबी की दुआ मिलेगी अगर तुम नबी की इजाजत लेके जाओगे, यानी अदब का ख्याल। देखिए इस हद तक अल्लाह ताला अदब सिखा रहा है अपने महबूब की बारगाह का। और अगर तुम अदब का ख्याल नहीं रखोगे, अल्लाह कह रहा है फिर तुम फितनों का शिकार हो जाओगे। दुनिया में तुम्हें फितने मिलेंगे और आखिरत में अजाबुन अलीम। देखिए अल्लाह को कितना नापसंद है, ये जरा नुक्ता नोट किया आपने, ये नुक्ता समझा जरा। यानी कि नबी की बारगाह की बेअदबी, अदना सी भी बेअदबी, देखिए इसमें क्या बेअदबी है, जो आंख बचा के उठ के चला जाए। अल्लाह को ये भी नापसंद है कि मेरा नबी मौजूद था और तुम खिसक गए चुपके से। अल्लाह को ये भी बेअदबी लगती है। अल्लाह कहता है इस बेअदबी पर भी मैं तुम्हें फितना मिलेगा और तुम्हें आखिरत में अज़ाबुन अलीम मिलेगा। इतनी अब अल्लाह को नापसंद है अपने महबूब की बेअदबी, जुबान दराजी, और जो लोग करते हैं गुस्ताही। आप सोचो वो अल्लाह को कितना नाराज करते हैं। लोग तो जुबानें खोल खोल के बातें करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करते हैं। अल्लाह कहता है मुझे तो इतनी सी बेअदबी भी गवारा नहीं है। और कितनी हमारी औरतें भी वहां जाके बैठी होती है, कहती हैं हम तो कुरान सुनने आए हुए हैं। किन के पास? जिनको अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में फितना और आखिरत में अज़ाबुन अलीम। तो बैठे हो तुम किन के साथ? जो है जालिमीन। तो फिर जो उनका अंजाम होगा वही आपका भी हो जाएगा। जो लोग उनके पास जाके कुरान सुनते हैं, बैठते हैं। आपको समझ आ रही है? क्योंकि अल्लाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदना सी बेअदबी भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। आपको समझ आ रही है? अल्लाह तो कहता है ना आम तरीके से बुलाओ, ना मेरे महबूब की बारगाह में आवाज ही ऊंची करो। आगे भी आएगा, आवाज भी ना ऊंची करना, तुम्हारे अमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सी बेअदबी से। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला फिर यहाँ पर जो रसूल की बेअदबी करता है, मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ आगे आखिरी आज देखिए आ रही है, यहाँ पर ये सिपारा खत्म होता है, 18वां सिपारा। जी सूरत नूर खत्म होती है। सूरत नूर खत्म होती है, 18वां सिपारा। 18वां सिपारा मैंने कहा खत्म हो रहा है। नहीं, सूरत फुरकान शुरू हो रही है, सूरत नूर खत्म। अच्छा एक मिनट, सूरत ये अल्लाह ताला आखिर में क्या फरमा रहा है, क्या कि देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का है। देखिए अल्लाह ताला बज़ाहिर आसमान और जमीन की बात करता है, लेकिन असल में अल्लाह कह ये रहा है कि हुक्म मेरा है, हुक्म भी मेरा है, आसमान और जमीन भी मेरे हैं ना। तो अल्लाह कहता है हुक्म भी मेरा है, क्या? अदब मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा का हर पल, हर लम्हा, हर वक्त ख्याल रखना। ये अल्लाह कह रहा है इस तनाजुर में जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह का है। फिर अल्लाह कहता है अल्लाह जानता है जिस पर तुम हो और जिस रोज़ लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, तो जो लोग अमल करते रहे हैं वो उनको बता देगा। यानी अल्लाह हमें क्या बता रहा है? आज हमें ये बता रहा है कि अगर तुमने बेअदबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं ना गुस्ताही की होगी, या बेपरवाही उसवे हसना से बरती होगी ना, बेरगबती बरती होगी, सुन्नत से शरीयत से बेपरवाह, सुन्नत की परवाह नहीं, शरीयत का पता नहीं, तरीक़त मुस्तफ़ा का पता नहीं, अदाब मुस्तफ़ा का पता नहीं, इताअत मुस्तफ़ा। अक्सर हम लोगों का यही हाल है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो ज़िंदगी है ना, सुन्नत और शरीयत का हमें सिर्फ वो पता है जो ज़रूरी है, वरना हम हर काम सुन्नत के मुताबिक नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखें हर काम की सुन्नत, हर काम को सुन्नत तरीके से करने का हुक्म दिया है, हर काम शरई तरीके से करने का हुक्म दिया है, हर काम तरीक़ा मुस्तफ़ा से करने का हुक्म दिया है, हर काम मोहब्बत मुस्तफ़ा और इताअत मुस्तफ़ा में करने का हुक्म दिया है, हर काम पैरवी मुस्तफ़ा में करने का हुक्म दिया है। हम करते हैं ऐसा? नहीं करते। तो हम भी बेअदबों में ही आते हैं। वैसे आपको बताऊं, बेअदबी और गुस्ताही हमने भी हद से ज़्यादा की हुई है। आपको मैं बताऊं
کیونکہ سنت سے بے پرواہ، شریعت سے بے پرواہ، طریقت مصطفیٰ سے بے پرواہ، اطاعت مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ سے بے پرواہی میں زندگی ہم نے گزاری ہے۔ ہم نے تو رسمی، رواجی، خاندانی، ہم نے تو اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ ہم نے شرعی، سنتی، سنت کے مطابق شریعت کے حدود قیود میں زندگی نہیں گزاری۔ تو ہم بھی گستاخی رسول میں ہی آتے ہیں، جنہوں نے عمل سے کی گستاخی، جنہوں نے نبی کے اسوہ حسنہ سے کی بے رغبتی، جنہوں نے شریعت کی بے پرواہی، یہ بھی گستاخی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں گستاخی کرتے، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو وہابی ہے نا، وہ زبانی گستاخی کرتے ہیں، ہم عملی گستاخ ہیں، عملی طور پہ۔ کیونکہ دیکھیں، نہ ہم لباس شریعت کے مطابق پہنتے ہیں، نہ ہم شریعت کے مطابق زندگی کی کہتے ہیں نا کام کرتے ہیں، نہ طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہر کام کرتے ہیں، نہ ہر کام ہم اطاعت مصطفیٰ میں کرتے ہیں، نہ ہم ہر کام پیروی مصطفیٰ میں کرتے ہیں۔ ہم تو یا خاندان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یا خاوند کی، یا بچوں کی، یا حالات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نبی کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بھی گستاخی میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، کہ ہم اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے خاندان اور رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بھی ہے نبی کی گستاخی، جو ہمیں بے رغبتی اور بے حسی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کام کرو اطیعوا اللہ اطیعوا رسول میں کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو خاندان اور بچے کہتے ہیں اسی طرح کرنا۔ اور ہم جو مائیں ہیں نا، خاندان اور بچوں کی محبت میں ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ یہ بھی گستاخی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اولاد اور خاندان کے پیچھے لگ جاؤ، پھر ہوگا کیا؟ وہی جو اللہ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے، سورۃ نور کی آخری آیات میں اللہ کہتا ہے یہ جو تم کھسک جاتے ہو نا، کھسک جاتے ہو۔ دیکھیں، وہ نبی کی محفل سے، وہ صحبت سے کھسک کے چلے جاتے تھے۔ ہم بھی سنت سے، شریعت سے کھسک جاتے ہیں نا جلدی جلدی، اولاد گئے، اولاد کے پیچھے کھسک گئے، خاندان کے پیچھے لگ گئے، دوستوں کے، سہیلیوں کے پیچھے لگ گئے، ہم بھی ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں سنت سے، شریعت سے۔ تو اللہ کہتا ہے ایک تو تمہیں ملیں گے فتنے، دنیا میں تجھے ملیں گے فتنے، اور آخرت میں ملے گا عذاب علیم۔ دیکھ لیں آپ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، گھر میں بنا کے رکھو نا، اولاد کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو، اولاد کی مانو گے نا تو ہی اولاد سے تعلق رہے گا، محبت رہے گی۔ اولاد سے جوڑو، نبی سے بے شک توڑ دو۔ یہ حال ہے ہمارا، میں آپ کو بتاؤں۔ خاوند کی مانو، جو مجازی خدا ہے، حقیقی خدا کو بے شک ناراض کر دو، کوئی بات نہیں، گھر تو بنا ہوا ہے نا، گھر بسا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، دنیا کے گھر بسانے کی اتنی فکر، جنت کا گھر بنانے کی کوئی نہیں فکر۔ یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کیا ہے یہ سارا شیطان کا مکر ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا ہے شیطان کا مکر، یہ ہے نفس کی سارا، نفس کا جکڑ، یہ ہے اندر سے نفس کا جکڑ، باہر سے شیطان کا مکر، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی اثر اور اسی سحر میں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں ایسے دلوں پہ لگا دیتا ہوں مہر، پھر ان پر میں نازل کرتا ہوں قہر، پھر قبر میں جاتے ہیں تو دائمی عذاب۔ سوچ لیں آپ، دنیا کے ہم بڑے ہوشیار ہیں، یہ نہ ناراض ہو، وہ نہ ناراض ہو، اللہ اور رسول بے شک ناراض ہو جائے، اس کی کوئی نہیں خبر ہے، اس سے ہم بے پرواہ گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو کیا ہی کچھ نہیں، جو خاوند کہتا ہے میں تو وہ کر دیتی ہوں، جو بچے کہتے ہیں لگاتے ہوئے لگ جاتی ہوں، میں تو نہیں کچھ کرتی، کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ حال اکثر عورتوں کا، مجھے رونا آتا ہے مجھے ایسے لوگوں کی حالتیں دیکھ دیکھ کے، کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہتی، نہ بچوں کو کچھ کہتی ہوں نہ خاوند کو کچھ کہتی ہوں، بچے بھی خوش رہے گھر بھی صحیح ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تو اللہ کو ناراض کر رہی ہے، رسول کو ناراض کر رہی ہے، اس کی نہیں پرواہ، خاوند نہ کہیں ناراض ہو جائے، بچے نہ کہیں میرے سے ناراض ہو جائے، یہ فکر، یہ سارا شیطان کا مکر۔ آگے دیکھیں سورۃ فرقان شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا سورۃ نور مدنی سورہ تھی، جس میں نور والے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، رحمت والے، تزکیہ والے احکامات دے رہا تھا۔ اب دیکھیں سورۃ فرقان مکی سورہ ہے، یہ ہوتا ہے یعنی فرقان جس کہتے ہیں نا فرق، اللہ کہتا ہے فرق کرو حق اور باطل کا، اللہ کی جلالت، جیسے کعبے کی طرف جاؤ نا، کعبے میں اللہ کی جلالت نظر آتی ہے، ہیبت۔ تو یہ
اللہ کہتا ہے کہ پہلے یعنی فرقان والے بنو، پھر تم ایمان والے بنو گے۔ تو دیکھیں سورۃ فرقان میں اللہ یہی باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان کے شروع میں ہی کہہ رہا ہے تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ پھر اس کا کلام جو ہے قرآن، یہ بھی برکت والا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ ہم قرآن اور رحمان دونوں سے دور۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری حالت ہے نا، جو شیطان نے ہمارا عشر کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا قصور نہیں ہے۔ ہم خود ظالم ہیں۔ پیچھے آیتیں گزری ہیں، اللہ کہتا ہے ظلم تم خود کر رہے ہو۔ جب تم نے قرآن سے منہ موڑا، میری برہان نبی سلطان سے منہ موڑا، جب تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو تم خود ظلم کر رہے ہو۔ میں تو نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے اللہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں، بلکہ اللہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ نزل الفرقان، اللہ کہتا ہے یہ میں نے قرآن کو فرقان بنا کے نازل کیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ ہر جگہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا فرقان، لیکن ہم تو کہتے ہیں میرے ساتھ ہو میرا خاندان، فرقان دی ہے رے۔ فرقان نہیں ہم ساتھ رکھتے، خاندان کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے ظلم جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ماں تو کچھ نہیں کرتی، بس آرام سے گھر بیٹھی رہتی۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس فرقان، نبی سلطان، ایمان اور قرآن۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جہالت، غفلت، ظلمت، منافقت میں وقت گزار کے کہہ رہے ہو میں تو گھر بیٹھی ہوں آرام سے اپنے خاندان کے پاس۔ اگر آپ کے پاس فرقان نہیں ہے نا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ اندھے ہیں، اندھے۔ جس کے پاس فرقان نہیں، پہچان نہیں، حق اور باطل کی پہچان نہیں، وہ اندھے دل والا ہے، سیاہ دل والا ہے، مردہ دل والا ہے۔ اسے گھر بیٹھے اس کی عبادتیں بھی مردہ ہیں، عبادتیں بھی اللہ کہتا ہے غبار ہیں، سراب ہیں، کیونکہ اس کا اپنا دل اندھا ہے، مردہ ہے، کیونکہ اس کے پاس فرقان نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو فرقان کی طرف ہی تو دعوت دی جاتی ہے، گھر سے نکلو، ایمان کے لیے نکلو، قرآن کے لیے نکلو، فرقان کے لیے نکلو۔ لیکن نہیں، ہمیں تو گھر بیٹھا شیطان کہتا ہے گھر بیٹھ کے گھر کے کام کر، گھر سجا، کھانے بنا، خاوند کو خوش کر، فرقان کی فکر چھوڑ دے، خاندان کی فکر کر۔ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے فرقان تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں اپنی پہچان ملے گی۔ آج ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہے، مسلمان زبانی مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، یہی نہیں پتا ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، مفسد ہوں، دل زندہ ہے، مردہ ہے، اندھا ہے، دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتا، بس یہ کہتے ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان، قرآن پڑھا مسلمان، کلمہ پڑھا مسلمان، نماز پڑھی مسلمان۔ یہ شیطان کے جو دیے ہوئے سارے سرٹیفکیٹ ہے نا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فرقان نہیں ہے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، اگر ہمارے پاس فرقان ہوتا، حق اور باطل کی پہچان ہوتی نا، تو ہم صحیح حقیقی مسلمان، مطیع مسلمان ہوتے، مطیع۔ ہم تو زبانی مسلمان ہیں، عملی نہیں ہیں۔ فرقان کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اپنی پہچان نہیں ہے، اور پھر ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ہم صراط المستقیم پہ چلنے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، مجاہدہ کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، نبی سلطان کی فکر ہی نہیں ہے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، ایمان لینے کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس فرقان نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں، اس لیے قرآن نہیں، ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو یہ فرقان نازل کیا تھا، برکت والی رب کی ذات نے تجھے برکت دینے کے لیے، نور دینے کے لیے، ایمان دینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ فرقان بھیجا تھا، کہاں پہ؟ علی عبدی ہی، اپنے بندے پر۔ یہ ہے بندے کی شان، یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ آپ کے سینے پر اللہ نے نازل کیا قرآن، ایمان، فرقان اور راضی رحمان، یہ ہے سبحان، پھر اس کو لے گیا سبحان، یہ ہے عبدی ہی، ایسا بندہ۔ اللہ کہتا ہے ایسی بندگی میں تم سے چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے یہاں بندہ کیوں کہا، اپنی باتوں کو کبھی نہیں نوٹ کرتے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے قرآن نازل کیا رسول پر، نبی پر، نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے فرقان نازل کیا علی عبدی ہی،
فرقان سے تمہیں بندگی ملے گی. فرقان جب تمہارے پاس ہوگا تو تم اللہ کے بندے بنو گے, رحمان کے بندے بنو گے. اگر تمہارے پاس فرقان ہوگا نا تو تم عبد الرحمان بنو گے, ورنہ تم عبد الشیطان. کتنے لوگ عبد الشیطان ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی قرآن میں گزرا ہے پیچھے, جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, جو شیطان کے خطوات کی پیروی کر رہے ہیں نا, وہ عبد الشیطان ہے. بہت کم لوگ ہیں جو عبد الرحمان ہیں, واقعی عبد الرحمان ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فرقان ہے, قرآن ہے, ایمان ہے اور اپنی پہچان ہے, وہ ہوتے ہیں عبد الرحمان. تو اللہ یہاں اشارہ دے رہا ہے, عبد سے اللہ نے اشارہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے ایسا عبد چاہیے جو عبد الرحمان ہو, جیسے میرا محبوب تھا عبد الرحمان. پھر اس کو لے گیا سبحان سیریں کروانے, پروازوں میں. اللہ کہتا ہے تو بھی بننا عبد الرحمان, تو پھر تجھے بھی میں تیری روح کو پر اور پرواز دوں گا, اپنی محبت اور قربت کی سیریں کراؤں گا, جیسے میں نے اپنے عبد کو کروائی تھیں جب اس کو لے گیا تھا سبحان. سورت میں آپ نے پڑھا ہے نا, بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں, سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ. اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ بنا تھا, پھر اس کو میں سیریں کرانے, قربت کی, محبت کی, جنتوں کی. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اشارے سے تم بھی بنو نا میرے عبد الرحمان, تمہیں بھی میرے سیریں محبت کی, قربت کی, نور کی, تزکیہ کی, طہارت کی, حشیت کی لذتیں, آج شراب طہور کے مزے ملیں گے. عبد الرحمان تو بن, قرآن سے نور بھی ملے گا, طہور بھی ملے گا اور سرور بھی ملے گا. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے, لیکن جو کافر لوگ ہوتے ہیں آیت 6-7 میں اللہ کہتا ہے وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں, اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں, باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ آیت نمبر 11 میں, یہ اصل میں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. جو نبی کو جھٹلاتے ہیں, قرآن کو جھٹلاتے ہیں نا, اصل میں اللہ کہتا ہے یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. اگر انہیں یقین ہوتا نا قیامت آنی ہے اعمال, تو پھر یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. جنہیں یقین ہوتا ہے قیامت قائم ہونی ہے, قیامت آنی ہے, تو وہ اقیم الصلاۃ والے ہوتے ہیں, وہ اقیم الدین والے ہوتے ہیں, وہ اقیم الحق والے ہوتے ہیں, وہ اقیم بالوزن والے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جنہیں یہ یقین ہوتا ہے نا قیامت آنی ہے, وہ دین کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, وزن کو قائم کرتے ہیں, حق پر قائم رہتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, کیا ہم یہ قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی یقین ہے قیامت آنے والی ہے؟ کیا ہم نے دین کی حدود قیود کو قائم کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نماز کو اپنی زندگی پر قائم کرتے ہیں؟ کیا ہم اقیم بالوزن والے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بات کریں, سچی ستھری بات کریں. اقیم الوزن کرتے ہیں ہم, اقیم بالقسط کرتے ہیں, انصاف کی بات کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی پر ظلم نہ کریں. ہمیں تو یقین نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں عملی طور پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے قیامت قائم ہوگی. کیونکہ اگر ہمیں یقین ہوتا نا تو ہم پہلے حق پر قائم رہنے والے, پھر دین کو قائم کرنے والے, پھر نماز کو قائم کرنے والے, پھر وزن کو قائم کرنے والے ہوتے, پھر ہم انصاف کو قائم کرنے والے ہوتے. لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا مفاد دیکھتے ہیں, اپنی خوشی دیکھتے ہیں, اپنی مرضی دیکھتے ہیں. ہم کہاں حق کو قائم کرتے ہیں, قرآن کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہی نہیں. ہمارا تو کبھی اس طرف دھیان, کیا کبھی سوچ بھی نہیں گئی کہ یہ قائم کرنے کی چیزیں ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ 18 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جو ہے نا جن کا دھیان ہی نہیں ہے, نہ قرآن کی طرف, نہ نماز کی طرف, نہ دین کی طرف, کچھ بھی یہ قائم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کافر جو ہے نا آخرت میں, اس طرح کے لوگ جو ہے نا آخرت میں اللہ کہتا ہے یہ بالکل بے سر و سمانی کے عالم میں ہوں گے. 18 اور 19 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اللہ کہتا ہے یہ دین سے اور قرآن سے نا بے پرواہ ہو گئے ہوئے ہیں. دنیا کا مال اکٹھا کر کر کے نا ان کے دل بے حس ہو گئے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت کی وجہ سے نا ان کے دل اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ دین کہتے ہیں نا صراط المستقیم پہ چلنے کی فکر ہے, نہ قرآن پہ عمل کرنے کی فکر ہے, نہ نبی کی پیروی کی فکر ہے. انہیں بس دنیا کا مال اور گھر بار اور آل اولاد کی فکر ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا اللہ کہتا ہے
اسی لیے یہ لوگ پھر آخر میں ہلاک ہوں گے. دیکھیں اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے. آج مال جمع کر کر کے اللہ کہتا ہے تم نے خود کو ہلاک کر دیا نا, تیرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے, نہ ہمت, نہ صحت, نہ طاقت, نہ جوش, نہ ولولہ, نہ اللہ کے لیے نیت, کچھ بھی نہیں بچا. آخرت کی طرف بلاؤ نا, لوگ کہتے ہیں ٹائم بھی نہیں ہے. اتنا دنیا میں کھپ گئے, رل گئے, دنیا میں اتنا فنا ہو گئے کہ اپنی صحت, ہمت, طاقت, سوچ, فکر, صلاحیت سب دنیا کا مال کمانے کے لیے اللہ کہتا ہے انہوں نے کھپا دی ہے. فنا میں اپنے آپ کو اتنا ان لوگوں نے کھپا دیا ہوا ہے کہ اب اللہ کہتا ہے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں, صراط المستقیم کی فکر ہی نہیں, قرآن سے تزکیہ اور ہدایت لینے کی فکر ہی نہیں, نبی کی اسوہ حسنہ کی پیروی کی فکر ہی نہیں, ایمان کمانے کی فکر ہی نہیں, اقیم الصلاۃ کا پتہ ہی نہیں, اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ مقام حاصل کرنے کا پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, ختم کر لیا ہوا ہے, ختم ہو گئے ہوئے ہیں. یہ سارا جوش, طاقت, ہمت نا انہوں نے دنیا میں ہی کر دی ہوئی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ گمراہ ہیں, اور یہی لوگ پھر اللہ کہتا ہے ہلاک ہوں گے, اور آخرت میں پھر بے سر و سامانی کے عالم میں بے یار و مددگار ہوں گے. آخرت میں پھر ان کا نہ کوئی گھر ہوگا, نہ کوئی مقام ہوگا, نہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ٹھکانہ ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. 18, 19 اور 20 میں یہاں پہ دیکھیں, اب یہ 18واں سپارہ ختم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں, یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ نبی کو بھی, نبی کا بشر ہونا بھی ان کے لیے نا ایک فتنہ ہی بن گیا ہوا ہے. اسی پہ لڑ مر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں. نبی بشر ہے کہ نور ہے, بشر ہے کہ انسان ہے, عام بشر ہے کہ خاص بشر ہے, اس بحث سے بھلا تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس رسول کی پیروی کرو. تمہیں ناپنے کی, تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس بشر کی حقیقت اور حیت جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس پہ عمل کرو. اللہ کہتا ہے نبی کا بشر ہونا بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے بہتری کا باعث بنتا. دیکھو ہمارا نبی بشر بن کے آیا, ہم بھی عام انسان ہیں, تو ہمیں اس نبی کے وسیلے سے پتہ چلا سنت کیا ہے, شریعت کیا ہے, اللہ کی حدود کیا ہے, قیود کیا ہے. اللہ کہتا ہے بجائے اس کے کہ یہ اس بشر سے بشارت لیتے, اس بشر سے بشیر, اس بشر کو بشیر سمجھ کر اس سے جنت کی بشارتیں لیتے, انہوں نے بشر کو ایک فتنہ بنا دیا ہوا. ہر چیز ان کے لیے فتنہ ہوتی ہے, مال و دولت دنیا کا فتنہ, اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نبی کا بشر ہونا ایک فتنہ, اسی کے پیچھے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اس کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کو راضی نہیں کر رہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کہتا ہے جو دنیا دار ہیں, منافق ہیں, وہ فتنوں میں, فسادوں میں, جھگڑوں میں, بحث میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اور نبی پر اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. آخری بات دیکھیں, آخری بات نوٹ کریں. اللہ کہتا ہے یہ لوگ تو ان فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ ہم سے مخاطب ہے اینڈ پہ. اللہ کہتا ہے اتصبرون, تم صبر کرنے والے ہو کہ نہیں؟ ذکر, فکر, شکر, صبر, تم ذکر, فکر, شکر, صبر میں ہو کہ نہیں؟ تم میرے نبی کی اطاعت اور پیروی میں صبر کرو گے کہ نہیں؟ کہ تم بھی اسی بحث میں پڑ جاؤ گے, بشر ہے کہ نبی ہے, نور ہے کہ بشر ہے. اللہ کہتا ہے تم نے بھی اسی فتنے میں پڑھ کے فساد کرنا ہے, یا کہ تصبرون, تم صبر کرو گے حق پر, صبر سے, سمینا و اتونا پہ صبر سے چلنا, میرے نبی کی اطاعت پیروی میں مجاہدہ کرنا صبر سے کرو گے. اب اللہ ہمیں پوچھ رہا اتصبرون, صبر کرو گے؟ تمہارے ارد گرد بہت فتنے ہوں گے, بہت فساد ہوں گے, بہت لوگ تمہارے اوپر حملے کریں گے, تمہارے ساتھ دنگے فساد کریں گے, تمہیں تانے دیں گے. جب تم نبی کے راستے پر چلتے ہو نا, یہ آسان راستہ نہیں ہے نا, یہ دکھوں, غموں, تکلیفوں, آزمائشوں, پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے.
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, हर तकलीफ, आजमाइश, जंगों से भी, महाजों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। हत्ता कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना, पत्ते खाकर गुजारा किया जब सब ने बाइकआउट कर दिया रसूलुल्लाह का, आपको निकाल दिया, मक्के से निकाल दिया, फाका कशी तक नौबत आ गई कि पत्ते खाकर गुजारा किया, अपने दुश्मन बन गए, खानदान वालों ने बॉयकॉट कर दिया कि ये इनसे कोई लेन देन नहीं करना, इनको निकाल दो। जिस दीन की तरफ ये बुला रहा है ना, जब तक वो कहते थे ये हमारी पैरवी नहीं करेगा, हमने इसके साथ तल्लक रखना ही नहीं है, नबी से बॉयकॉट कर दिया। नबी ने सब दुख, गम, भूख, कहते ना, पहाड़ों में रहे, गारों में रहे, दुखों में रहे, गमों में रहे, आजमाइशों में रहे, जंगों में रहे, अपनों और गैरों की साजिशों में रहे, मकरों का शिकार होते रहे, फिर भी अल्लाह कहता है इस नबी की पैरवी करके अतस्बिरून, सब्र करोगे। देखिए कितना बड़ा सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा सवाल अल्लाह आपसे पूछ रहा है। इसलिए इतने आराम से ना कहते हाँ कर लेंगे, ये आसान नहीं है। सब्र करने के लिए कहते ना, नफ्स कुशी, मुजाहिदा मुजाहिदा मुजाहिदा, और मुजाहिदे के लिए जिहाद, जिहाद के लिए सब्र, तकलीफें, हर तरह का गम, परेशानी, तंगी, सख्ती, भूख, प्यास, हर तरह का दुख, अजियत सह के भी शिकवा नहीं करना, इसको कहते हैं अतस्बिरू। शिकवा ना करना, ये हो गया मेरे साथ, ये चला गया, ये छोड़ गया, ये दर्द, ये मर्ज, ये अल्लाह कहता है सब्र। समझ आ रही है आपको? अतस्बिरून, सब्र, क्या तुम सब्र करोगे? वकाना रब्बुका बसीरा, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। कह तो रहे हो आसान से, कहना आसान और करना जो है ना, ये पूरा मुजाहिदा है, ये मुश्किलों मुशक्कतों का रास्ता है। लेकिन क्या, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आपको समझ आ रही है? अल्लाह कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए दिखावा ना करना, मुजाहिदा करना। यहाँ पे देखें 18वां पारा सूरत फुरकान पे खत्म हुआ है। और अगर इसका थोड़ा सा मैं एक लफ्ज का खुलासा देखूं तो इस सिपारे से, कद अफलाहा से, मुझे ये समझ आई कि असीरी वाले बन जाओ, जुल्फे मुस्तफ़ा की असीरी वाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें जगह जगह अल्लाह ने कहा है इस नबी की असीरी वाले, नबी की सुन्नत, शरीयत, तरीक़त, इताअत, मोहब्बत, असीरी वाले, मेरे महबूब की जुल्फों की असीरी वाले बन जाओ। जो भी काम करो मेरे महबूब की मर्जी से करो, इसकी पैरवी में करो, इसकी असीरी वाले बन जाओ, फिर कल को ये तुम्हारी शिफात करे, शिफात वाला बन जाए। आमीन सुमा आमीन। मा अलैना